Hello everyone. Before starting our topic, let's discuss one basic unit. We all know 1 dozen is equal to 12. If we say 1 dozen oranges means 12 oranges are there. 1 dozen bananas means 12 bananas. 1 dozen pens means 12 pens. It means 1 dozen is equal to 12 is a standard unit. We all know 1 dozen is equal to 12. अगर 1 दर्जन oranges है means 12 oranges. 1 dozen bananas means 12 bananas. 1 dozen pens means 12 pens, means 1 dozen is equal to 12 is a standard fixed value which each one of us know that if we say 1 dozen means उस 1 दर्जन में हमें जो चीज चाहिए वो कितने पीसेस आएंगे, that will be 12 in number. Shifting to our topic now, which is mole concept. Like 1 dozen, 1 mole also have a fixed value which is equal to 6.022 into 10 to power 23, which is also called Avogadro number. Now here we say 1 mole atom is equal to 6.022 into 10 to power 23 atoms. In the same way, if 1 mole molecules, then 6.022 into 10 to power 23 molecules. If 1 mole ions, then 6.022 into 10 to power 23 आइंस. जैसे 1 दर्जन 12 के इक्वल है. 1 दर्जन कोई भी आर्टिकल होगा, कोई भी फ्रूट होगा, कोई भी चीज जो 1 डजन कहेंगे तो उसमें वो 12 पीसेस आएंगे. इन द सेम वे 1 mole is a fixed standard value which is equal to Avogadro number, and that number is 6.022 into 10 to power 23. इस 1 मोल में अगर एटम है तो इतने एटम्स, अगर 1 मोल मॉलिक्यूल्स हैं तो इतने मॉलिक्यूल्स, अगर 1 मोल आयंस है तो इसमें इतने आयंस होंगे, बिकॉज दिस वैल्यू इज द फिक्स्ड स्टैंडर्ड वैल्यू. ऑल्सो 1 मोल which is equal to Avogadro number, it is also equal to gram atomic mass or gram molecular mass. 1 mole is equal to 6.022 into 10 to power 23. It is also equal to gram atomic mass or gram molecular mass. अगर एटम का मास ले रहे हैं तो यहाँ ग्राम एटॉमिक मास, अगर हमारे पास 1 मोल मॉलिक्यूल्स होंगे तो उसके लिए हम क्या लेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि हम यहाँ 1 मोल ऑक्सीजन एटम ले रहे हैं, 1 मोल ऑक्सीजन एटम विल बी इक्वल टू 6.022 into 10 to power 23 atoms of oxygen, and it is equal to gram atomic mass which is equal to 16. ऑक्सीजन के एक एटम का मास क्या है, 16. लेकिन 1 मोल एटम्स का मास क्या है, 16. मीन्स दिस 16 इज द मास ऑफ एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स. अगर हम कहें 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, then it will be equal to 32 grams, and here it is equal to 6.022 into 10 to power 23 molecules of oxygen. Means O2 इतने मॉलिक्यूल्स के बराबर 1 मोल है, एंड इट इज इक्वल टू 32 ग्राम. अगर हमें निकालना हो कि 2 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का क्या मास होगा, तो 2 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स विल बी इक्वल टू 64 ग्राम. और 2 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कितने मॉलिक्यूल्स के इक्वल होंगे, 12.044 into 10 to power 23 oxygen molecules. So in this way 1 mole is equal to Avogadro number,
and it is also equal to gram atomic mass or gram molecular mass. One more thing, 1 mole is also equal to 22.4 liter in case of volume. This is also the standard unit. 1 mole is equal to Avogadro number. It is also equal to gram atomic mass in case if we are taking atoms here, and gram molecular mass if we are taking molecules here. And in case of volume, 1 mole is also equal to 22.4 liter. Now for more clarity, let's discuss some questions based on it. Calculate the number of atoms in 8 gram oxygen atom. First of all, we will write 1 mole oxygen atoms. It is equal to gram atomic mass, which is equal to 16 gram. And here on this side, 1 mole is equal to 6.022 into 10 to power 23 oxygen atoms. We have to find number of atoms in 8 gram oxygen. 16 ग्राम ऑक्सीजन में कितने एटम्स हैं? 6.022 into 10 to power 23. 8 ग्राम ऑक्सीजन में कितने एटम्स होंगे? 16 का हाफ हो गया 8 ग्राम, तो नंबर ऑफ एटम्स भी हाफ हो जाएंगे, विच इज 3.011 into 10 to power 23 ऑक्सीजन एटम्स. इसी में अगर हमें यहाँ साथ में ये भी क्वेश्चन हो कि 8 ग्राम कितने मोल के इक्वल है? 16 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल, 8 ग्राम विल बी इक्वल टू हाफ मोल, 0.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स. मीन्स फ्रॉम हेयर एक चीज हमें गिवन हो, इस स्टैंडर्ड वैल्यू से वी कैन फाइंड द रेस्ट टू. अगर ये गिवन होती तो ये दोनों निकाल लेते, ये गिवन होती तो ये दोनों निकाल लेते. इसी तरह यहाँ हम क्वेश्चन में मॉडिफिकेशन करें, हाउ मेनी ग्राम्स विल बी देयर इन 1.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स. 1.5 मोल ऑक्सीजन एटम्स कितने ग्राम के इक्वल होगा? अगर 1 मोल 16 ग्राम के इक्वल है तो 1.5 मोल विल बी इक्वल टू 24 ग्राम ऑक्सीजन एटम्स. 1 मोल 16 ग्राम के इक्वल है, आधा मोल 8 ग्राम के इक्वल है, तो 1.5 मोल किसके इक्वल होगा? 24 ग्राम्स के इक्वल. इसी तरह हम 1.5 मोल के यहाँ नंबर ऑफ एटम्स भी निकाल सकते हैं, 9.033 into 10 to power 23 ऑक्सीजन एटम्स. Coming to the next question, calculate the number of molecules and number of atoms present in 16 gram of oxygen molecule here now. अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, then this standard value changes as 1 mole oxygen molecule will be equal to gram molecular mass, which is equal to 32 gram. And here it changes to molecules, 6.022 into 10 to power 23 molecules of oxygen. 1 mole oxygen molecule is equal to Avogadro number of molecules of oxygen is equal to 32 grams. Now we have to find number of molecules and number of atoms present in 16 gram of oxygen molecule. अगर 32 ग्राम में 1 मोल ऑक्सीजन है और इतने मॉलिक्यूल्स हैं ऑक्सीजन के, तो 16 ग्राम में कितने मोल होंगे? हाफ मोल, विच इज इक्वल टू 3.011 into 10 to power 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन. 32 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल्स हैं, 16 ग्राम में उसके हाफ हो जाएंगे, 3.011 into 10 to power 23 मॉलिक्यूल्स. अब क्वेश्चन में हमें दो चीजें फाइंड करनी थी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स, बट स्टिल हियर वी हैव डिस्कस्ड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ओनली. नाउ वी नो in one molecule of oxygen, number of atoms they are, number of atoms are 2. अगर एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स हैं तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे? in 3.011 into 10 to power 23 molecules of oxygen, number of atoms 2 into 3.011 into 10 to power 23, which is again will become equal to 6.022 into
10 to power 23 atoms. Means number of molecules in 16 gram will be 3.011 into 10 to power 23. एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स होते हैं, तो जितने मॉलिक्यूल्स है उनमें कितने एटम्स होंगे, दैट इज 6.022 into 10 to power 23 atoms. Discussing the third question now. Calculate the number of molecules and number of atoms present in 11.2 liter of carbon dioxide at NTP. अब हमने यहाँ किया कि 1 mole is equal to gram atomic mass और gram molecular mass, which is also equal to 22.4 liter. Means now here we have to discuss about volume and mole. So we have to find number of molecules and number of atoms. 1 mole carbon dioxide molecule is equal to 22.4 liter at NTP, which is equal to 6.022 into 10 to power 23 molecules. एक मोल मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का इतने मॉलिक्यूल्स के इक्वल है और इतने लीटर के इक्वल है. हमें क्या फाइंड करना है कि 11.2 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे. अगर 22.4 लीटर में इतने मॉलिक्यूल्स है तो 11.2 लीटर में ऑब्वियसली दे विल बी half of it 3.011 into 10 to power 23 molecules of CO2 और moles कितने होंगे, it will be equal to half mole. इतने लीटर में इतने मॉलिक्यूल्स होंगे. अगर 22.4 लीटर में एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है तो 11.2 लीटर में 3.011 into 10 to power 23 मॉलिक्यूल्स होंगे. नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स. एक ऑक्सीजन के एक CO2 के मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होते हैं, 2 ऑक्सीजन के 1 कार्बन का. मींस इन 1 मॉलिक्यूल नंबर ऑफ एटम्स in 1 molecule of CO2 number of atoms will be 3. In 3.011 10 to power 23 molecules of CO2 number of atoms will be 3.011 into 10 to power 23 into 3, which is equal to 9.033 into 10 to power 23 atoms which are present in these much number of molecules of CO2. The question was कि 11.2 लीटर में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे और कितने एटम होंगे. अगर 22.4 लीटर है तो इतने मॉलिक्यूल्स, 11.2 लीटर है तो इतने मॉलिक्यूल्स. एक मॉलिक्यूल में 3 एटम्स, इतने मॉलिक्यूल में कितने एटम्स. So by this way we can find how many molecules, how many atoms if we have to find the number of moles or if we have to find in the volume of the gas. या हमें वॉल्यूम गिवन हो उसके बेसिस पर हमें उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम्स निकालने हैं. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 5.6 ग्राम ऑफ आयरन. टू फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन द गिवन मास, कि हमें जितना अमाउंट गिवन है उसमें कितने मोल्स प्रेजेंट है. टू फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स which is represented by letter small and number of moles is equal to given mass upon molar mass. Given mass is 5.6 gram and molar mass is 56 gram. Means we will get 0.1 moles. To find the number of moles means N is equal to 0.1 moles of iron present in 5.6 gram of iron. So by this we can find number of atoms, number of molecules if you want to find volume or number of moles. Coming to the next one, percentage composition. अगर हमें किसी भी चीज की परसेंटेज फाइंड आउट करनी होती है, लेट्स टेक द सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ आवर मार्क्स. अगर हमें मार्क्स की परसेंटेज फाइंड करनी हो तो हम टोटल ऑब्टेन्ड मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स इनटू 100 करें तो हमें अपने मार्क्स की परसेंटेज फाइंड पता चल जाती है. इसी तरह अगर हमें किसी कंपाउंड में एलिमेंट्स की परसेंटेज फाइंड आउट करनी हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे, मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड अपॉन टोटल मोलर मास ऑफ दैट कंपाउंड
into 100. Understanding it with the example, calculate the percentage of hydrogen and oxygen in 1 molecule of water. Simply हमें कितने परसेंट हाइड्रोजन और कितने परसेंट ऑक्सीजन प्रेजेंट है इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर वी हैव टू फाइंड. कि पानी का एक मॉलिक्यूल बन रहा है, उसमें हाइड्रोजन कितना परसेंट यूज हो रहा है और ऑक्सीजन कितने परसेंट यूज हो रहा है. 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, इसका मोलर मास क्या होगा 1 into 2 plus 16 which is equal to 18. अब हमें क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन. परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन विल बी इक्वल टू मास ऑफ द एलिमेंट. टोटल मास ऑफ द एलिमेंट हम किसका निकाल रहे हैं, हाइड्रोजन का. टोटल हाइड्रोजन का मास कितना प्रेजेंट है मॉलिक्यूल में, 2 ग्राम अपॉन टोटल मोलर मास ऑफ द कंपाउंड विच इज 18 into 100. सिमिलरली परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, टू फाइंड द परसेंटेज, ऑक्सीजन का कितना मास है 16 अपॉन टोटल मास इनटू 100. सो बाय दिस वी कैन फाइंड द परसेंटेज कॉम्पोजिशन कि किसी एक कंपाउंड को बनाने के लिए जो एलिमेंट्स यूज हुए हैं उन एलिमेंट्स का कितना कितना परसेंटेज उस कंपाउंड में प्रेजेंट है. थैंक यू.